Good morning, dear students. My name is Sudhesh Shukla, and I used to teach a subject electronics devices. Electronics devices. During our previous discussions, we have covered the topic semiconductor. We have just also covered the properties regarding the semiconductor. Along with the properties, we have also gone through the classifications of semiconductors. And one thing I hope you remember, that I have told you that while somewhere seeing or listening the term semiconductor, one thing should always be in your mind, that semiconductor means partial conductor and partial insulator, which means कि सेमीकंडक्टर में दोनों की प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, विथ अ सर्टेन कंडीशन. ऐसी नहीं है कि बिना किसी कंडीशंस पे. डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ कंडीशन एट विच semiconductor behaves as an insulator and semiconductor behaves as a conductor. And what was that condition? During my previous video, we have discussed that condition is, yes student, that condition is temperature. If we are considering capital T temperature at 0 Kelvin, the semiconductor will work as a insulator. And if we are increasing that temperature or have put some finite value for that temperature, that is T is equals to 300 Kelvin, which is nothing but your room temperature, at that our semiconductor material behaves as a conductor. So that was all about the semiconductors. But now today we will cover the types of semiconductor. Today the topic which is being covered is types of semiconductor, and I hope you all know the types of semiconductor, because we are not talking about the classifications of semiconductor, we are just going to cover the types of semiconductor. And that semiconductors are basically are of two types: intrinsic semiconductor as well as extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor as well as extrinsic semiconductor. Dear students, this is the type of semiconductor. Further, this extrinsic semiconductor is classified into two types. One is p-type semiconductor and another is n-type semiconductor. What is p-type, what is n-type, or how we are going to form this p-type and n-type, we will discuss later on. But before it, we have to first of all know that what is intrinsic semiconductor and what is extrinsic semiconductor. While discussing these two subtopics, let me brief you in a few seconds that if we are talking about intrinsic semiconductor, that means pure form of semiconductor. And if we are talking about the extrinsic semiconductor, that is basically called a impure form of semiconductor. What basically this pure form or impure form means, we will discuss. So first of all, I would like to tell you about the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Dear students, I have told you that intrinsic basically means a pure form of semiconductor. This pure form means if we are taking a crystal lattice of any type of semiconductor, that is either silicon or germanium or basically
the fourth A group elements. Dear students, we all know the periodic table, the placement of the elements in periodic table, inside which we also know that what type of elements exist in fourth A group, or what type of elements exist in third A group, or what type of elements exist in fifth A group. So dear students, फोर्थ ए ग्रुप की जब हम बात करते हैं, इनसाइड इट वी ऑल नो कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बट वन थिंग आई वांट टू मेक यू श्योर अबाउट द एलिमेंट कार्बन. अगर हम कार्बन का केस लेते हैं, इफ यू आर गोइंग टू टेक द कार्बन विच इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ फोर्थ ए ग्रुप, likewise silicon and germanium, this is not treated as a C. Generally if we write it like C, this element is not treated as a semiconductor because there are few of the reasons. First, due to its unstable properties. Second, due to its unreliable properties. Third, due to its unpredictable nature. We can say unpredictable properties. And the fourth one is large energy gap, which value is about greater than equal to 5 electron volt. Dear students, while considering the fourth A group element to be a semiconductor type, or when we are going to manufacture our electronic devices in which we are going to use the semiconductor material, inside which if I am considering the fourth A group element in which the carbon is not considered as a semiconductor material, due to these properties which I have mentioned here, inside which the first property is the instability of that element. This element is not stable in nature. Second is due to its unreliability. That element is also not reliable. Due to its unpredictability, its many of the properties with other elements are unpredictable, which is not useful for our applications. And the last one is large energy gap. What is the actual meaning of energy gap? I have told you in my previous videos. And here for this carbon element, I have written that energy value to be greater than equal to 5 electron volt. Dear students, I hope you remember during our discussions while taking case of insulator, and while discussing the energy band diagram, I have drawn the value for Eg to be greater than equal to 5 electron volt. And I have told you this is the much amount of energy which is being required for a device. And if there is no problem with us while providing this energy, we can provide it. But what happens कि अगर हम इतनी amount of energy provide करते हैं, तो provide करते हमारा जो device होगा that will burn out, वो जल जाएगा. तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी नीड है, दैट विल नॉट फुलफिल, वो फुलफिल नहीं होगी, इन टर्न हमारा डिवाइस बर्न आउट हो जाएगा. तो ये इतनी मच अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. तो अगेन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में कार्बन को यूज करता हूं, तो फिर वही सिचुएशन आएगी कि वो मटेरियल हमारा इंसुलेटर की तरह ट्रीट होगा. तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं. दैट्स व्हाई वी लीव दिस कार्बन for the semiconductor material. So that was quite behind for our semiconductor discussion. Let us come on this topic, intrinsic semiconductor. तो यहाँ मैंने आपको बताया कि this is the pure form of semiconductor, and I am going to tell you
कि क्या मतलब है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर का। सी स्टूडेंट्स, जब हम क्रिस्टल लेते हैं सेमीकंडक्टर का, उस क्रिस्टल में जब हम एटम्स की बात करते हैं, इफ जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, और मैंने डिस्कशंस के दौरान ये भी आपको बताया था कि ऑन एन एवरेज कितने नियर अबाउट पर सेंटीमीटर क्यूब एटम्स के होने के चांसेस होते हैं। दैट वाज द वैल्यू 10^22 और 23 और 24 नियर अबाउट इतने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल होते हैं। तो क्या होता है कि अगर वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल की हम बात करते हैं, तो उस क्रिस्टल में जो भी एटम्स होंगे दैट विल बी ऑफ सेम टाइप, वो सेम टाइप्स के होंगे। अगर ऐसा होता है तो उसको हम कहेंगे दैट इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे लेट सपोज मैं क्रिस्टल लेता हूं, ये व्हाइट चौक को अगर मैं क्रिस्टल लेता हूं और इसको मैं कहता हूं कि दिस इज अ सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो व्हाट इट मींस कि इस चौक में जो भी एटम्स होंगे वो सेम टाइप के एटम्स होंगे, वेदर इट मे बी ऑफ सिलिकॉन के, वेदर इट मे बी ऑफ जर्मीनियम की, किसी के भी हो सकते हैं, जो भी फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट है एक्सेप्ट टू दैट ऑफ दिस कार्बन। तो क्या है मतलब प्योर फॉर्म का, आपको पता लग गया कि प्योर फॉर्म मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स या सिमिलर एटम्स, वी कैन say that similar atoms of fourth A elements, fourth A elements के similar type of atoms। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चाहे हम सिलिकॉन ले लें, चाहे हम जर्मीनियम ले लें। So this is for the intrinsic semiconductor. Let me draw a diagram for this so that you can easily understand what I am going to say. I am just drawing the crystal for silicon semiconductor material. This is what about the atom. Inside it there is a nucleus which is drawn by a white chalk, and in the neighbor I am also drawing the, let me draw all this with a blue chalk so that you may not be get confused. Let me draw more precise way. The atoms, and I hope you also remember one thing about the small a, interatomic spacing. And one thing more, I have told you that almost all semiconductors are crystalline in nature. That means कि जो atoms का arrangement होता है, the atoms which are arranged that are periodic in nature, periodically arrangement होता है उनका। और हमें ये भी पता है कि दो एटम्स के बीच अगर वो सेमीकंडक्टर का मटेरियल है तो उन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज द एटम which are having 4 electrons in their outermost shell, they what basically do, they share the electrons with the neighbor atoms। वो क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं नेबर के एटम्स के साथ। सो ड्यू टू दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड की मेटल्स के बीच में,
तो मेटल्स के लिए मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। बट यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। हर एक एटम of that crystal is going to share its one electron with its neighbor. This is what I have drawn here, is basically intrinsic semiconductor. मैंने आपको बताया था कि when we are going to take either silicon or germanium, basically these two are most preferable semiconductor materials or elements because their outermost shell is having 4 electrons. उनके outermost shell में 4 electrons होते हैं. As we all know that if I am taking this to be a silicon semiconductor crystal, अगर मैं सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेता हूं एंड विच आई हैव ड्रॉन हियर, तो यहां आप देख पाओगे कि जैसे सिलिकॉन का मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर इज 14. सो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं 284, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और रिमेनिंग जो 10 आते हैं हमें उनसे मतलब नहीं होता है. क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का जब केस लेते हैं या जर्मेनियम का केस लेते हैं या जब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का केस लेते हैं, तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि जो उनके आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली शेयर करते हैं दूसरे एटम्स के साथ. तो वो शेयरिंग क्यों करते हैं? जस्ट दे वांट टू मेक स्टेबल, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं. फॉर स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे बेसिकली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स सो में दैट उनका ऑक्टेव कंप्लीट हो सके, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सके. और वो तभी पॉसिबल होगा कि जब एक एटम जो है वो एटम अपने 4 को अगले एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा. तो शेयरिंग की वजह से इसके 4 और उसके 4 कंप्लीट, 4 + 4 = 8, ऑक्टेव कंप्लीट हो जाती है. तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि जो भी एटम्स हैं, यहां पे मैंने 3 3 6 3 9 एटम्स को लेके बात किया और मैंने बताया था कि नॉर्मली हम देखते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 10^22 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी बेसिकली इक्विवेलेंट टू 4 into, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मल्टीप्लाई विद दैट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली 9 एटम्स को लेके बताया हूँ. ऐसे ही क्रिस्टल बेसिकली फॉर्म जो होता है वो उतने नंबर ऑफ एटम्स को लेके होता है. तो यहां हम देखते हैं कि हर एक एटम वो सिलिकॉन का है और हर एक एटम अपने नेबर के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है. जस्ट टेक दिस वन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में डियर स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, और ये चारों ने अपने नेबर के साथ शेयरिंग की. जैसे इस एटम की बात करें तो इसका एक इसके साथ शेयर हो रहा है, इसका एक एटम इसके साथ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसके नेबर के साथ. ऐसे कंप्लीट एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लैटिस या क्रिस्टल बोलते हैं. तो यहां पे इसमें आप देख पा रहे हो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, सिमिलर एटम्स ऑफ सिलिकॉन के हैं. तो ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है. ठीक है, अब देखिए ये तब तक था जब हम बात कर रहे थे स्टेडी स्टेट कंडीशन पे, मतलब जहां अनवेयरिंग प्रोसेस था, अनवेयरिंग कंडीशंस थी, टेम्परेचर या जो भी फिजिकल पैरामीटर्स है ऑल दोज आर कांस्टेंट. बट इफ आई एम ड्राइंग द एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम for intrinsic semiconductor, it will be like this way.
at T is equals to 0 Kelvin. T is equals to 0 Kelvin के बीच में this is what the conduction band, this is what the valence band. T is equals to 0 Kelvin पे जो आपके जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इसी रूप में यहां पे अवेलेबल होता है. इलेक्ट्रॉन्स यहां पे वैलेंसी का काम करते हैं. T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में वैलेंसी का काम करते हैं और कंडक्शन बैंड एम्प्टी स्टेट में होता है. दिस इज एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन. बट व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एनर्जी, व्हाट हैपेंस कि बॉन्ड यहां पे ब्रेक होते हैं. जो ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, जैसे ही हम कुछ एक्सटर्नल एनर्जी इस क्रिस्टल को प्रोवाइड करते हैं, HNU के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या जो भी हम एक्सटर्नल सोर्स यूज करें, तभी इस क्रिस्टल का बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी पाते ही. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया था इन आवर प्रीवियस डिस्कशंस कि एनर्जी इनकी जो होती है जिसके थ्रू ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, फिर एक्सटर्नल एनर्जी पाते ही ये एक्साइट हो जाते हैं और इनमें, इसके लैटिस में, इस क्रिस्टल में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और ड्यू टू दैट वाइब्रेशन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो जंप कर जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में और इलेक्ट्रॉन्स यहां कहीं आ जाते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन था डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रॉन को हमने बोला था कि इनका फंक्शन है बेसिकली वैलेंसी फुलफिल करना. बट जैसे हमने इनको एक्सटर्नल, इस क्रिस्टल को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी पाते ही ये अपने स्टेट को लीव कर देते हैं और एक्साइट होकर इनका ट्रांजिशन हो जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में. और जब यहां जाता है यही इलेक्ट्रॉन, तो यही इलेक्ट्रॉन आपका कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन. एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन. कंडक्शन के लिए यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है. इलेक्ट्रॉन सेम है बट उसकी फंक्शनिंग अलग है. यहां पे वो बाउंडेड है, वैलेंसी का काम कर रहा है, बट यहां पे वो फ्री है क्योंकि इसके पास एनर्जी, इससे इनिशियल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो गई है. और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां इस स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यहां पे इट लीव्स अ वैकेंसी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. एंड दैट इज नथिंग बट द डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड अ होल्स. ये कहलाता है आपका होल. सी, जैसे मैं टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे स्विच करता हूं, मतलब थर्मली एक्साइट करता हूं, और वी कैन से ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन द वाइब्रेशन स्टार्ट इन दिस क्रिस्टल, एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशन व्हाट हैपेंस, बेसिकली द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेटेड. अमाउंट या कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेड स्टेट में एज वेल एज होल्स का ग्राउंड स्टेट में. तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस टेम्परेचर T is equals to 300 Kelvin, what happens, the equal number of holes and electrons are generated. And if I am denoting the concentration of electrons with this N and concentration of holes with this P, so at steady state condition their concentration is basically equal to each other. दोनों के कंसंट्रेशन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हो चाहे वो होल्स की कंसंट्रेशन हो, दोनों की कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट होती है. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सो आई कैन डिनोट द charge carrier concentration with this Ni symbol, and that is basically equivalent with number of electrons as well as number of holes. अगर मैं इंट्रिंसिक के लिए बात करूं कंसंट्रेशन या चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन की, जिसको मैं Ni से डिनोट करता हूं, तो आई विल से कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इज बेसिकली इक्विवेलेंट विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स. सो इंट्रिंसिक के लिए हम बेसिकली यूज करेंगे और वी कैन फॉर्मुलेट इट टू बी Ni is equals to N is equals to P. So I hope what is being taught to you people आपको समझ लग गया होगा.
And if you have any doubt regarding the topic which is being taught to you people, you can directly ask to me without any hesitation. So this is all for today. I hope you will take care of yourself also. Thank you, dear students.